नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। झुग्गियों में रह रहे लोगों को नए साल पर मिला नया घर। प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपी 1675 नवनिर्मित फ्लैटों की चाबी। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने एक जनसभा को किया संबोधित। आप सरकार पर लगाया दिल्ली को आपदा में धकेलने का आरोप। कहा, दिल्ली वालों ने छोड़ दी है आपदा के विरुद्ध जंग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के जेएनयू में वेदांत पर आयोजित 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को किया संबोधित। कहा, वैश्विक समस्याओं के समाधान में वेदांत की भूमिका महत्वपूर्ण। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। To Bangladesh regarding Sheikh Hasina's extradition. Second, so there has been a lot of debate on H-1B visas. We saw recent comments by US President-elect Donald Trump, which is in contrast to what he had said earlier. What is India's comment on that, since Indians are main beneficiaries of H-1B visas, how it is going to impact India-US relationship? Pranay? So Pranay Upadhyay from Amar Ujala. My question relates to the recent media reports published in the Washington Post claiming that India tried to subvert the Maldivian government. And since the Maldivian foreign minister is likely to visit India, I want your comment on that. Also, there are media reports claiming that the Indians have carried out certain operations inside Pakistan and some hawala payments being done, claimed by the media report. What do you have to say on that? Okay. Uma? So I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. The PBD is happening. Who is the chief guest for the PBD? The Iranian foreign minister was here. So can you just give a sense of what was discussed? Because apparently energy security was one of the issues that they wanted to discuss. Siddharth? Hi, sir, Siddharth from Beyond. So my question is, any update on the Nimisha Priya case? And we have seen how the Iranians are keen to help the Indian side of the issue. How do you see that outreach by the Iranian side? Sir, K.M. Sharma from Bharat Express. There has been a report that extradition of Muhabbar Rana is very close. Is this so or not? Okay, let's look at these questions first and then we'll come back. Ayushi, first your question regarding Bangladesh. A week back I had confirmed that we had received a communication from the Bangladesh authorities in respect of former PM Sheikh Hasina. Further than that, I have nothing to add at this point in time. On H-1B visa, you would understand that this India-US partnership, which is an expansive world, and both our countries have strong and growing economic and technological partnership. And within this ambit, mobility of skilled professionals is an important component in this ambit and this collaboration. India-US economic ties benefit a lot from the technical expertise provided by skilled professionals, with both sides leveraging their strengths and competitive value. We look forward to further deepening India-US economic ties, which are to our mutual benefit. On your question regarding Pranay, regarding articles recently published, I want to. These are articles that you referred were published by Washington Post, one on Maldives and the other one in relation to Pakistan. So to that, I would say that both the newspaper and the reporter in question appear to nurse a compulsive hostility towards India. You can see a pattern in their activities
I leave you to judge their credibility. As far as we are concerned, they have none. And as far as Pakistan is also mentioned in the article. So on Pakistan, I would like to remind you what Hillary Clinton said. You can't, and she said, and I quote, you can't keep snakes in your backyard and expect them only to bite your neighbors. So that is my response. तो ये आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपी। सरकार का उद्देश्य दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के निवासियों को उचित सुख सुविधाओं से सुसज्जित बेहतर और स्वस्थ परिवेश प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए आवास की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में, जहां झुग्गी वहां घर परियोजना के अंतर्गत निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे जी को आगे रखकर चंद कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा की ओर धकेल दिया है। पीएम ने कहा कि दिल्ली वालों ने आपदा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, इसको बदल कर रहेंगे। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भली भांति जानता है कि उन्होंने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनवाए हैं और वे चाहते थे अपने लिए भी शीश महल, वो चाहते अगर तो अपने लिए भी शीश महल बना सकते थे। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में CBSE के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक एकेडमिक ब्लॉक और द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक एकेडमिक ब्लॉक शामिल है। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है, जिसमें शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। आप सुन रहे हैं दिल्ली रेडियो और हम हैं दिल वाले। हाँ मतलब वही दिल्ली वाले। भैया हम दिल्ली वालों का दिल जीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम ने। 10 साल से देख रहे हैं मेट्रो, हाईवेज, आधुनिक कन्वेंशन सेंटर से लेकर पक्के आवास तक बनाकर हमारी जिंदगी आसान बना रहे हैं। हमारी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। तो मैं बता रहा था कि जेलर वाला बाग और अशोक विहार की झुग्गियां तो आप जानते ही होंगे। जो लोग अब तक यहां ऐसे जीने को मजबूर थे, वो अब यहां रहेंगे स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में। नाम भी सही है। अब हमारे गरीब परिवार यहाँ स्वाभिमान के साथ रहेंगे। बहुत ही नरकीय जीवन हम लोग बिताए। आज मोदी जी ने जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे करके हम गरीबों का कायाकल्प कर दिया। हमारा मोदी जी छत नहीं भविष्य दिए हैं। हमारा बच्चे का भविष्य आगे बढ़ेगा। 1675 फ्लैट्स, जहां हवा खिड़कियों से आती है और प्रकाश बालकनी से। यहाँ बिजली, पानी, गैस घर घर में है, लिफ्ट है, हेल्थ सेंटर है, बच्चों का पार्क भी। आज इन स्वाभिमान अपार्टमेंट्स का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत के निर्माण के सहभागी हमारे कर्मयोगी सरकारी कर्मचारी ऐसी ही शानदार जगह पर बेहतर जीवन बिताएं। स्वागत है सरोजनी नगर में बने सरकारी आवासीय क्वार्टर्स में। मॉडर्न फैसिलिटीज, गुड कंस्ट्रक्शन और हाँ, सर्दियों के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम बड़ा काम आएगा। यहाँ 19 टावर्स में 1738 फ्लैट्स हैं और साथ ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी है, जिसका आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है। चलिए अब दिखाता हूँ मेरी दिल्ली की नई स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत, जिसे देखकर सब बोलेंगे जस्ट वाओ। दिस इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नौरोजी नगर में बना ये वर्ल्ड क्लास बिजनेस सेंटर। इस ह्यूज ऑफिस प्रेमाइस में 20,000 लोग काम कर पाएंगे। 8,000 गाड़ियां यहां एक साथ पार्क हो पाएंगी और यहां स्काई टॉप रेस्टोरेंट भी है। दिल्ली की जरूरत को ध्यान में रखा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। करीब 1950 करोड़ रुपए की लागत से बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज नई मजबूती मिल रही है। मोदी जी दिल्ली में CBSE के हाईटेक डिजिटल मुख्यालय का शुभारंभ भी कर रहे हैं। और साथ ही सूरजमल विहार में दिल्ली विश्वविद्यालय के नए लॉ फैकल्टी के ईस्ट कैंपस का शिलान्यास भी। ये विशाल कैंपस 15 एकड़ में फैला होगा। द्वारका स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के पश्चिमी कैंपस और रोशनपुरा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और इस समय उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारकर चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी। कासगंज में गणतंत्र दिवस के मौके पर 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विकास सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से। विकास सिंह, एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला और अब फिर जिस अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे वहां से भी कोई राहत नहीं। 28 लोगों को उम्र कैद की सजा चंदन गुप्ता हत्याकांड में दे दी गई है। बड़ा फैसला एनआईए कोर्ट का। जी बिल्कुल, 6 साल बाद ये फैसला आया है। परिवार को इंतजार था इस फैसले का, दोषियों को सजा सख्त से सख्त सुनाई जाए। उसके तहत आज एनआईए कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अलग अलग धाराओं में इसमें फैसला आए हैं। जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उम्र कैद का दिया गया है 302 में 28 लोगों को सजा सुनाई है, जबकि 2 आरोपियों को बरी किया गया है। ये 2 आरोपी हैं नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी, जबकि अजरुद्दीन एक दोषी था जिसकी इस दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई थी। 2018 26 जनवरी को जब ये घटना होती है उसके बाद कासगंज कई दिनों तक सुलगता रहता है हिंसा की आग में। इस तरीके की ये घटना हुई है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को सजा दी है। हालांकि जो सलमान था जिसने गोली चलाई थी चंदन गुप्ता के लिए, उसके लिए और अन्य लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी। उसकी बीमारी हालत के मद्देनजर थोड़ी सी कोर्ट ने दया दिखाई है, तो उसको उम्र कैद की सजा दी गई है इन 28 लोगों को। हालांकि सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि जो 2 आरोपी बच गए हैं उनको सजा दिलाने के लिए वो लोग हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज बड़ा दिन है चंदन गुप्ता के परिवार के लिए, उस पूरे इलाके के लिए, कि इन सारे आरोपियों के खिलाफ आज एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और बिल्कुल ये कासगंज के लिए, वहां के रहने वालों के लिए भी एक बड़ा संदेश है। जिस तरीके से 26 जनवरी 2018 के बाद वहां पर जो घटनाक्रम हुआ था, तिरंगा यात्रा ये लोग निकाल रहे थे, ये युवा ग्रेजुएशन कर रहा था चंदन गुप्ता, अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। बिल्कुल उसके परिवार पे क्या कुछ बीती। 6 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और इसके बाद आज कोर्ट से फैसला आया है। निश्चित रूप से चंदन गुप्ता के परिवार के लिए ये एक अच्छा दिन है, उनके लिए एक सुखद दिन होगा कि उन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इन 28 लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल विकास, उम्र कैद की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना लगाया गया है सभी को। हत्या के लिए उम्र कैद के साथ ही तिरंगा के अपमान में 3-3 साल की सजा भी दी गई है। इस पर सुनते हैं क्या कहना है चंदन गुप्ता के वकील का। उनकी ओर से ये तर्क था कि जो है, एक तो ये था कि ये संख्या ज़्यादा है और सबका रोल डिफाइन नहीं है, खाली सलीम का रोल डिफाइन है, उसको जो है मारने का रोल है, लेकिन वो जो है उसकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, इसके लिए उसके लिए दया की जाए। सलीम का रोल जो है मारने का था, लेकिन उसकी बीमारी की कंडीशन को देखते हुए ये कोर्ट ने जो है निर्णय लिया। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आज चंदन गुप्ता के परिवार को कुछ राहत मिली होगी। जिस तरह से उनके परिवार के एक सदस्य चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी तिरंगा यात्रा के दौरान, 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है एनआईए कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कोई राहत नहीं दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जेएनयू में वेदांत पर आयोजित 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के कई शिक्षाविदों और विद्यार्थियों सहित 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में जारी वैश्विक समस्याओं का समाधान दिलाने में वेदांत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वेदांत भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन शैली का मुख्य आधार है। World is at the cusp of another revolution, I said. And the challenges will be incremental now. They will not be arithmetic, they'll be geometric. And therefore, let us bring Vedantic wisdom from ivory towers to classrooms, ensuring its reach to every corner of society. And therefore, in all humility, I propose adding a dedicated panel next year to discuss Vedanta accessibility, adaptability, and practical implementability. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील के साथ बैठक की। बाद में दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के संबंध की प्रगति को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध को और आगे ले जाने के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने भारत की मालदीव के प्रति प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने मालदीव को भारत की पड़ोस प्रथम नीति की ठोस अभिव्यक्ति बताया। I think we have some important developments to report, positive developments to report. And certainly there is much more that we need to do. I see that the framework to promote the use of local currencies for cross-border transactions has been signed. We have increased our engagements in various sectors. And I do want to say that India has always stood by Maldives. For us, you are a very concrete expression of our neighborhood first policy. तो वही मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील ने अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान कहा कि ये साल की मेरी पहली द्विपक्षीय भागीदारी है। मेरी इच्छा भी थी कि ये बैठक भारत में हो। खलील ने कहा कि हम आगामी वर्ष के लिए एक गतिशील और सार्थक एजेंडा की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इसे मालदीव भारत संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष बताया। खलील ने कहा कि हम औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने भारत और मालदीव की साझेदारी को सदियों पुरानी बताते हुए कहा कि हम दशकों के विश्वास और मित्रता में निहित लोगों के बीच संबंधों को विकसित करना जारी रखेंगे। खलील ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लाभार्थी के तौर पर मालदीव की सरकार भारत द्वारा दिए गए महत्व को काफ़ी मानती है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा मालदीव का सहयोग करने को लेकर कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारत सरकार ज़रूरत के समय तत्काल प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में मालदीव के साथ लगातार खड़ी रही है। My first bilateral engagement of the year. I wanted it to be India. I look forward to having an open and constructive discussion with you as we plan a dynamic and meaningful agenda for the year ahead. It is an important year for the Maldives-India relations. We are celebrating 60 years of establishment of formal diplomatic relations. Our partnership dates back to centuries. Our partnership is built on mutual understanding, respect, and a shared commitment. Rooted in decades of trust and friendship, it will continue to thrive, propelled by people-to-people connections. Honorable Minister, as a beneficiary of India's neighborhood first policy, the government of Maldives deeply values the significant importance
India plays in its relationship with the Maldives. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कई नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसकी प्रशंसा न केवल राज्य की जनता बल्कि विपक्षी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नक्सल उन्मूलन की दिशा में महायुति सरकार ने अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि 2 रोज पहले गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसमें प्रमुख नक्सली कमांडर तारक्का सेदाम भी शामिल हैं। देवेंद्र फडणवीस को इनका हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है। और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। वहाँ देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी, जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है उस तरह से, तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने कंट्रोल लिया है गढ़चिरौली का, तो जरूर हम उनका स्वागत करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।